Welcome to Think Like UPSC. Today we are starting Emile Durkheim. This is our second thinker in our sociology as a thinker में हम paper one में and this again this thinker we will be doing first we will be covering thinker holistically like I have divided into the parts like first we will be doing this Durkheim's methodology and the social fact, then division of labor and theory of society, and then religion may we will be focusing on elementary form of religious life and concept of anomy and criticism and relevance in contemporary society. So basically who is Durkheim? So he is also one of the well-known thinker of his time and who is very known for bringing the other different subject like psychological subject or the economical subject into this sociological subject. So basically he is known for this thing and in Europe he established the sociological department, and as well as he became the first first sociological professor. When we talk about the Durkheim, Emile Durkheim, so his theory revolves around saying that society is the supreme, society is everything which is letting you do this thing or that thing. Society, so basically he is saying there's nothing like individuality, there's nothing like individuality is not everything, there is more above, there is something above the individual. That is what your society tells you to behave like this, society tells you to stay like this, society tells you to focus on a career like this, society tells you that you should have this kind of a job instead of becoming a clerical, joining a clerical job, you should focus on becoming like IAS, like all of you are working for achieving IAS. So this is like who has told you? It's a society which has glorified this term IAS. It is being glorified by whom? Society. It's not you. You individual is the little minor thing. That's the little one, little efforts. But who is the superior one? Superior one is the society. This is what glorification of the profession or glorification of the thoughts is being done by society according to Emile Durkheim. So in this if you are able to clear suppose a exam of a blank clerical, or if you are a like well-known doctor, but still people choose whom they respect more. The majority of them are being respected by whom, like the person who's like, there are two friends of mine, one is IAS officer and the other one is doctor. Of course doctor they have a different value, although he is also in a government job, he is also other one, both are into the government job. But the most thing what we respect in a society, glorification जो हुआ है society में, that is किसका, एक IAS को ज़्यादा अहमियत दी गई है. तो that's what who has told you, it's the society आपको बता रही है ये सब कुछ. Here, Durkheim's contribution for the formative discipline ये यहाँ पे immense रहता है, was very immense, and he is also one of the founding father of the sociology, and he will try to define the subject matter of sociology and attempt to develop it into the society in a form of a sociology. So he here defines what, so study of social facts and scientific methods for its स्टडी. ये स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट बताएंगे, प्लस उसमें साइंटिफिक मेथड्स को किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, ये सारा कुछ दरखाइम बोलते हैं, इसमें बताते हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे बताएंगे कि लाइक ही गेव अ डिस्टिंक्टिव सोशलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म इन वन ऑफ हिज कैजुअल फंक्शनल थियोरेटिकल कंटेक्स्ट में बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन हिज थ्योरी ऑफ सुसाइड, थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ रिलीजन, ही गिव एक्सप्लेनेशन जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं विच वॉज द डिस्टिंक्टिवली लाइक सोशोलॉजिकल कंटेक्स्ट. नो, इट वॉज नॉट अ इंडिविजुअल थिंग, दैट इंडिविजुअल्स ओन विलिंगनेस इज नॉट एवरीथिंग. इट्स अबाउट द सोसाइटी हु इज लेटिंग द पर्सन टू commit suicide or letting a person to follow a religion. It's not individual thing. So he developed a method and of a certain
method, certain or a certain specific method in the sociology, and also demonstrate, he'll try to demonstrate in this into like use of theories, different use theories like theory of suicide, or he uses methods of a multi variety analysis. And in his social fact, Durkheim is highly influenced by the approach of a natural scientist. In his social fact, Durkheim is very highly approachable or influenced, you can say, by the natural science. So here basically social facts are divided into two parts. One is your material facts, that is your law, custom, duties and all, and other one is a non-material social facts. So here value and morality in your inner consensus, it plays a very vital role. So here, so in sociology, this so in social fact, Durkheim will try to focus more on the non-material social facts. So in Durkheim here further clarify करते हैं यहाँ पे like is the scope and the methodology of the sociology. In his book, he'll write the rule of sociological methods in 1895. He wrote a book in 1895, Rule of Sociological Fact. So he wrote a book. So when you attempt to answer, then you are quoting a book, name of a book and the year which he published it. So it fetches you extra marks. So in this, according to him, he is saying that the task of sociologist is to study the social fact. जो एक sociologist का task है वो क्या है कि social facts को आपको पढ़ना है, and वही किस तरह से पढ़ना है social fact को as अ थिंग. सोशल फैक्ट को क्या समझ के पढ़ना है कि ये कोई चीज है, ये कोई वस्तु है, कोई चीज है. लाइक वी स्टडी अदर डिफरेंट नेचुरल वर्ल्ड, जिस तरह से हम जैसे साइंस को पढ़ते हैं, या फिर अगर हम लाइक कोई कमोडिटी है उसको पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से हमें सोशल फैक्ट को पढ़ना पड़ेगा. सो ही फर्दर डिफाइन करेंगे सोशल फैक्ट आर द वेज ऑफ एक्टिंग. क्या है सोशल फैक्ट? इट इज अ वे ऑफ एक्टिंग. सोशल फैक्ट्स आर द way of acting, and in this way of acting he'll say कि wait a second. Social fact he'll say that it is a way of acting, thinking and feeling and external to the individual and endowed with a power of codes, and by virtue of which they control him. So here he consider करते हैं social fact as a एक तरह का phenomena है जो exist करता है outside the individuals, जो individual से कहीं बाहर जाके exist करता है. individual तो basically एक तरह का क्या है, it is a force which codes an individual to think, जो एक individual को सोचने पे मजबूर करता है. एक society है, एक सोच है, act एंड फील, जो इंडिविजुअल जिसके बेसिस पे एक्ट करता है, फील करता है, या फिर पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करता है. लाइक ये सोसाइटी सिखाती, जैसे बड़ों का आदर करना है, किसने सिखाया है आपको? सोसाइटी ने सिखाया है. तो दीज ऑल आर द टास्क विच इज बीइंग टॉट बाय सोसाइटी. तो हियर डर्कहाइम इज फोकसिंग ऑन दीज फैक्ट्स एंड ही विल से कि द टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई. तो बेसिकली जो टास्क है सोशियोलॉजी का वो क्या है? टू आइडेंटिफाई all these tasks and study such social phenomena or a social fact. इन टास्क को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद में लर्न इट एंड ट्राई टू रिसर्च ऑन दैम. Then there are basically 4 type of facts: externality, constraining, generality, and your last one is your independence. So basically independence, when we say externality, social fact exist जहाँ पे आउटसाइड द इंडिविजुअल से कहीं बाहर हट के, आउटसाइड उसके डोमेन में नहीं आता, उससे बाहर आता है. मस्ट बी सीन एज अ पार्ट ऑफ अ इंडिविजुअल. दीज आर जैसे कि कम इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन देयर ओन एज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस डेवलपमेंट इन अ सोसाइटी. अपने आप से सोसाइटी में ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं. दिस इज ऑल व्हाट sui generis, that is externality. When we talk about constraining, here the social fact exercise करता है constraining influence over the individual action. So here the constraint is in the nature of the causation. एक तरह का नेचर है causation का, and the existence क्या किस तरह से करता है, makes a social fact as real.
एक सोशल फैक्ट को उतना ही रियल बना देता है, उतना ही कॉन्स्टेंट इज अ विजिबल टर्म इन द कॉन्सिक्वेंस, एक तरह का विजिबल टर्म हो जाता है कॉन्सिक्वेंसेस के। तो नेक्स्ट इज योर जनरलिटी। जनरलिटी में when we say here we say common to a group or a law personal के law personal के। फॉर एग्जाम्पल when we say डर्कहाइम रिजेक्ट करते हैं स्टडी ऑफ कंसेप्शन और स्टडी ऑफ एक्सेप्शन को, जहाँ पे फोकस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ जनरल टाइप। फॉर एग्जाम्पल ही स्टडीज रिलीजन एज अ जनरल टाइप, रिलीजन का एक जनरल टाइप है, एंड डज नॉट स्टडी एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन रिलीजन को वो अलग से नहीं पढ़ते। ही से रिलीजन एज अ जनरल, religion as a general he is being he studies that. So when we talk about independence here, social fact are independent of a will। वो कैसे social fact independent है अपनी will से of an individual। So individual क्या करता है, individual cannot change the social fact। अगर मैं अकेली चाहूँ तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ social facts को, but rather the opposite is true। मैं बल्कि उस जो सोसाइटी है उसके साथ मिक्सअप हो सकती हूँ, वो हो सकता है, but I individual can't change the society। So that's दस डर्कहाइम बोलते हैं कि कीप अ सोशल फैक्ट अबव इंडिविजुअल। तो इसीलिए डर्कहाइम स्टार्टिंग से फोकस करेंगे कि सोसाइटी में जो सोशल फैक्ट हैं, जो सोशल कॉन्स्टेंट्स हैं, ये क्या है, आपके सुपीरियर हैं। दीज आर द सुपीरियर पावर इंस्टेड ऑफ योर इंडिविजुअलिटी। लाइक बोलते हैं कि हर बच्चे में एक अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर फीचर होता है, इंडिविजुअलिटी होती है, वो नहीं बोलते। वो ये कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी है, ये समाज है जो आपको बोल रहा है, समाज ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। तो सोसाइटी इज द थिंग। तो डर्कहाइम इन दिस सोशियोलॉजिकल मेथड इन 1895 डर्कहाइम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द टू ब्रॉड टाइप ऑफ सोशल फैक्ट, जहां पे वो बताएंगे मटेरियल सोशल फैक्ट्स एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में। तो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में आप जब वो बताते हैं तो बेसिकली डर्कहाइम की जो थ्योरी रिवॉल्व करती है वो आपकी नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट पे रिवॉल्व करती है। बिकॉज ये अभी मटेरियल सोशल फैक्ट में आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, लॉज आते हैं, कस्टम्स आते हैं, रिलीजन्स आते हैं। तो जब ये रिलीजन कस्टम ये सब चीजें आती है तो ही सॉ अ सोशल फैक्ट अमंग अ कंटिन्यूअस ऑफ अ मटेरियलिटी के लिए कंटिन्यूअस में देखते हैं। तो द सोशियोलॉजिकल यूजुअली बिगिन क्या है, स्टडी ऑन फोकसिंग ऑन मटेरियल सोशल फैक्ट विच आर empirically accessible और in order to understand the non-material social fact। non-material को social fact को पढ़ने के लिए आपने material social fact से निकल के गुजरना पड़ता है, which are like abstract in nature, hence difficult हो जाता है हमारे लिए वो ग्रेस्प करना, एज वेल एज कैन बी स्टडीड ओनली इन इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली स्टडी किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल सोशल फैक्ट। तो आपके जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है इनको बिना इसकी हेल्प के आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको उनको स्टडी करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द मटेरियल सोशल फैक्ट। तो टू मेक दिस स्टडी ऑफ अ सोशल फैक्ट ईजियर डर्कहाइम सजेस्ट करते हैं दैट सोशल फैक्ट शुड बी स्टडीड इन टर्म ऑफ देयर इफेक्ट और द कॉन्सिक्वेंसेज इन दिस सोसाइटी। कि सोशल फैक्ट को उस तरह से पढ़ो कि क्या इफेक्ट हुए हैं सोसाइटी के ऊपर इसके, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सोसाइटी के ऊपर। वाइल डूइंग अ साइंटिफिक अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड, और इसको करते हुए आप साइंटिफिक अप्रोच को अपनाओ, एंड द रिसर्चर शुड बी ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच एंड विदाउट एनी बायसनेस और आइडियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट को आइडियोलॉजी पे फोकस ना करते हुए। तो डिटरमाइनिंग कॉजेज जो हैं आपके सोशल फैक्ट के अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम इज लाइक कॉज ऑफ अ सोशल फैक्ट लाइज इन अनदर सोशल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल cause of society does not lie in individual's life, individual के ऊपर नहीं होता, बल्कि it should be explored on a different aspects of his life, like उसकी family का में क्या कंसर्न था, या सोसाइटी से क्या उसको मिला, तो या उसके फ्रेंड सर्कल से उसको क्या मिला। तो these all things are the different factors which should be studied instead of focusing on the individuality। तो डर्कहाइम basically focusing on this thing। Next is your determining a function of a social fact में according to him here is your social fact perform करता है certain function perform करता है prerequisite ऑफ द सोसाइटी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बोलते हैं कि मेंटेन करने के लिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोशल फैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल फैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू हिम कलेक्टिव कोजन होता है। कैसा होता है? कलेक्टिव
कंसेंस होता है हमारा, कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, कलेक्टिव विलिंगनेस होती है हमारी, इन इज दैट द सोशल फैक्ट दैट मिनिमम सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हुए इट हैज़ अ constraining effort on individual and it affects their action, उनके एक्शंस को अफेक्ट करता है। द सोसाइटी आपका मैनिफेस्ट करती है इटसेल्फ इन इंडिविजुअल्स एक्शन, सोसाइटी मैनिफेस्ट कर रही है इंडिविजुअल के एक्शन को। तो यहाँ पे रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन भी डिफरेंट रहता है, प्लस रूल्स ऑफ आपके क्लासिफिकेशंस भी डिफरेंट रहते हैं। डर्कहाइम यहाँ पे बोलते हैं कि दैट एवरी सोशल फैक्ट इज नॉट यूनिक, हर सोशल फैक्ट यूनिक नहीं होता है, बट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन, बट वो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन का पार्ट है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल फैक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड लाइक स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट में, जहाँ पे वो बोलते हैं कि दीज आर द फैक्ट which give you a particular society in appearance. For example, in his institutional social fact में he'll say these are the facts which are institutionalized and accepted by the people, जो लोगों ने accept किया है, like these really include religion, division of labor, rate of suicide etc. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट आपके क्या होते हैं? दीज आर द फैक्ट्स जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जनता ने, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बट हैव अ पोटेंशियल ऑफ एग्जिस्टिंग, लाइक उसके पास में अपनी वो पोटेंशियलनेस है, अपनी वो डेप्थनेस है, इंडिविजुअलिटी है, ऑन लाइक टू राइज स्पॉन्टेनियसली एंड मे और मे नॉट सस्टेन, मे नॉट मे, लाइक जैसे आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये नॉर्मली ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट इज़ नॉट श्योर, देयर इज नो श्योरिटी कि वो आगे चल के वो उस चीज़ को सस्टेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ फॉर एग्जाम्पल, अगला आप उसमें और भी एग्जाम्पल लाइक मॉब का बिहेवियर जो होता है एंड क्राउड का बिहेवियर, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम रहे, विद टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लाइक जो छोटा बच्चा होता है उसकी ना स्टार्टिंग में ना उसकी प्रेफरेंसेस ईटिंग हैबिट्स में डिफरेंट होती हैं, विद टाइम जैसे वो ग्रो करता है तो उसके बाद उसकी ईटिंग हैबिट्स फिर डिफरेंट हो जाती हैं, लाइक इट मे नॉट रिमेन सेम, इट मे कीप चेंजिंग। तो ये क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट्स हैं आपके। दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ सोशियो करंट, ये क्या है? सोशियो करंट है आपके, सोशियो के एज अ करंट अफेयर्स जैसे होता है उस तरह से सोशियो का करंट एस्पेक्ट्स हैं ये। तो रूल ऑफ डिस्टिंक्शन जब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें डर्कहाइम बोलते हैं कि व्हाइल स्टडीइंग अ सोशल फैक्ट अ डिस्टिंक्टिव मस्ट बी मेड बिटवीन अ नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल स्टेट में एक डिस्टिंक्शन बनाए रखना चाहिए, जिसमें बोलेंगे कि सोशल फैक्ट रिमेन इन जनरल सोशल फैक्ट रिमेन रहता है, बट इन नॉर्मल स्टेट, बट व्हेन वी टॉक समटाइम्स इन सर्टेन सिचुएशन दे ऑल्सो डिस्प्ले पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लेते लाइक एट सर्टेन लेवल द लाइक क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, कंसिडर्ड टू बी ए नॉर्मल, कहीं हम बोलते हैं कि 2% क्राइम रेट है, तो वो नॉर्मली बोला जाता है कि 2% क्राइम रेट इज लाइक काफ़ी ठीक है, नॉर्मल है, ये ज़्यादा नहीं है, और लाइक 50% 60% क्राइम रेट नहीं है, 2% ठीक है, नॉर्मल है, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल वाइल इट इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। अगर ये 2% से ऊपर हो जाता है तो हमारे लिए वो क्या हो जाती है सिचुएशन, एक कैसे होता है, ज़्यादा डीपली सोचने की सिचुएशन हो जाती है, हम गंभीर वाली सिचुएशन में जाते हैं। जैसे इन्फ्लेशन की अगर बात करते हैं, इन्फ्लेशन सपोज अगर 0.5% इन्फ्लेशन है तो माना जाता है कि नॉर्मल है ये अभी। अगर इन्फ्लेशन वही 5% की रेट से हाइक हो रहा है तो क्या हो जाता है, कंट्रीज में प्रॉब्लम है, अब आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ेगा, देयर इज समथिंग अ बिग चेंज इज गोइंग ऑन, देयर इज अ प्रॉब्लम विद इन इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ पे आरबीआई इंटरफेयर करता है। तो ये चीज़ आपने देखी, तो यहाँ पे हमने क्या हो गया कि रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस आपके पैथोलॉजिकल स्टेट्स में किस तरह से मैटर करते हैं, लाइक इट जो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए, इस तरह से आप और भी करंट रिलेटेड एग्जाम्पल्स उसमें पुट अप कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पे पैथोलॉजिकल स्टेट और प्रूव डिसफंक्शन फॉर द सोसाइटी, पैथोलॉजिकल स्टेट आपका डिसफंक्शन ऑफ द सोसाइटी को बता सकता है, समझा सकता है आपको। तो रूल ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो आपका इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द सोशल फैक्ट, डर्कहाइम यहाँ पर सर्टेन रूल्स लाइक बताते हैं, लाइक वो बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेटर शुड ऑब्जर्व अ कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, वो बोलेंगे जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करता हुआ चले, और क्या करे वो, और क्या करना चाहिए उसको अपने पर्सनल बायसनेस या पर्सनल प्री ऑक्यूपेशंस पे या फिर जो उसकी पर्सनल थिंकिंग है उसको उस पर हावी नहीं होने देना चाहिए, लाइक उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, अपनी सोशलॉजिकल जो रिसर्च वो
कंडक्ट कर रहा है उसमें। लाइक मेथड्स जो यहाँ यूज करने को बोल रहे हैं, लाइक नेचुरल साइंस जिस तरह से मेथड्स यूज करती है इसमें टू स्टडी अ सोशल फैक्ट को भी स्टडी करने के लिए आपको साइंटिफिक मेथड ही यूज करने चाहिए, नेचुरल साइंस जिस तरह से यूज करती है। ही हिमसेल्फ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे टू यूज द मेथड्स लाइक concomitants और वेरिएशन लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन लाइक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करेंगे बाय शोइंग टू स्टडी अ डिफरेंट लाइक थ्योरी ऑफ सुसाइड जब उन्होंने करी थी तो उसको भी उन्होंने लाइक उसमें कंसिडर किया था, क्लासिकल एग्जीबिशंस, यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ द इन सोशियोलॉजी। सिमिलरली इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स भी यूज करेंगे इन हिज थ्योरी ऑफ रिलीजन में। लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सोशल फैक्ट मस्ट यील्ड जनरल थ्योरीज, वो जनरल थ्योरीज दे आपको। तो डर्कहाइम प्रपोज करते हैं फंक्शनल फॉर्मुलेशन देते हैं, एक तरह का फॉर्मूला देते हैं टू कॉजेस फंक्शनल थ्योरी जो एम्फसाइज करती है ऑन सेपरेशन ऑफ कॉजेस एंड फंक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलिजिटिमेट आइडियोलॉजीज को या फिर इलिजिटिमेट टेलीजॉजीज को। तो हियर हाउएवर जो उनकी थ्योरी है, जो उनके मेथड्स हैं सोशल फैक्ट के, वो पूरी तरह से मेजर नहीं करते हैं अप्स एंड claims of being scientific. तो here there are several criticism which he faces like यहाँ पे डर्कहाइम is more, यहाँ पे जो आपके हिडलमैन आते हैं वो अगेन ही इज अ थिंकर, सो ही सेज दैट डर्कहाइम जो है ना मोर कंसर्न है किसकी तरफ, टू मेकिंग लाइक सोसाइटी, मेकिंग ऑफ अ सोसाइटी की तरफ ज़्यादा कंसर्न है रेदर देन एक डिस्क्राइब मेथडोलॉजी को डिस्क्राइब करने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ही जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग अ सोसाइटी की तरफ में ध्यान दे रहे हैं। तो ही एम्फसाइज ऑन यूनिवर्सलिटीज एंड जनरल थ्योरीज एंड तो ये आपके बोलेंगे, आपके मर्टन बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, यूनिवर्सलिटीज पे फोकस कर रहे हैं। किस पे, कि he is just focusing on universalities and general theories and he is neglecting what middle range theories, जो middle range theories हैं, बीच के जो middle man जो players हैं या जो बीच के और भी factors हैं उनको he is neglecting. Who said this? This is being said by Merton. Again और आपके वो आते हैं thinker हियर पीटर बर्गर ये एक्यूज करते हैं कि दैट अकॉर्डिंग टू हिम ही इज सेइंग डूइंग इनजस्टिस टू द डिसिप्लिन by ignoring a individual human. He is just doing a injustice जिसमें कि वो individual human beings को वो ignore कर रहे हैं और किसको, और उसके individual के behavior को, individual की bid को या फिर उसकी objectivity को पूरा ignore कर दिया। फर्दर उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ social observation पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने देखा भी कि वो he is just focusing on social observation, तो these all critics is like very काफ़ी हद तक हेल्दी ही रहे हैं, मतलब को जो बोल रहे हैं लोग सही बोल रहे हैं। अगर हम वेबर की बात करते हैं, वेबर भी बोलेंगे कि लाइक ही इग्नोर सब्जेक्टिव मीनिंग, वेस्टरहैंड की सब्जेक्टिव मीनिंग को इग्नोर करके सिर्फ सोसाइटी वाले कंस्ट्रेंट पे फोकस करें। मार्क्सिस्ट भी बोलेंगे कि नेग्लेक्ट कर दिया पावर को, कॉन्फ्लिक्ट को, इकोनॉमी को, ओनली फोकसिंग ऑन द वन टूल। व्हेन टू डिटर्मिनिस्टिक हैं, इंडिविजुअल अपीयर पावरलेस। तो यहाँ इन्होंने इंडिविजुअल को कैसा बता दिया कि पावरलेस है, इंडिविजुअल कुछ नहीं है, सबको समाज है, इंडिविजुअल का अपना कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाट only society is responsible. तो social fact Weber के according to Weber is like social fact don't exist as thing in their own right waiting to be gathered like pebbles on beach, like social fact lies inside an individual. उनका कहना है डर्कहाइम वेबर का कि social fact जो है ना एक individual के अंदर है and their influence is on the basis of the individual's own interpretation. एक हर इंसान की individual की own interpretation है। अब लाइक किसी चीज़ को लाइक मम्मी ने बोला है कि खाना ना टाइम से फिनिश होना चाहिए, टाइमली खाना फिनिश हो जाना चाहिए, प्लेट ना टाइम से दीदी की जाने से पहले ना टाइमली प्लेट धुल जानी चाहिए आपकी वहाँ पहुँच के। तो इट्स लाइक मेरा अपना कंसर्न है, ठीक है कोई बात नहीं, धुलने का ही मतलब है ना, मेन कंसर्न धुलने का है, ठीक है मैं अभी नहीं खा रही, भी भूख नहीं लग रही, रख दिया, आई ईट लेटर ऑन। तो दैट्स व्हाट एक इंडिविजुअल की मेरी अपनी थिंकिंग है ना। मम्मी अपने हिसाब से बता के चली गई है मुझे कि बेटा जी आप अपना खाना अपना खत्म टाइमली ख़त्म कर लो और दीदी के जाने से पहले वो काम लाइक बर्तन धुल जाने चाहिए।
आई एम लाइक ओके ठीक है, बर्तन धुलना इज द मेन कंसर्न, ठीक है, वो लेटर ऑन मैं खुद खा के बाद में सेल्फ सर्विस कर लूंगी, धो के रख दूंगी बाद में, ठीक है। दैट इज माई थिंकिंग, इंडिविजुअल थिंकिंग। डरखाइम इस चीज पे फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल की अपनी इंटरप्रिटेशन है ऑफ सोशल फैक्ट, सो इट इज अ नट सेल। इंस्टेड ऑफ प्योरली मैक्रो पर्सपेक्टिव नहीं फोकस करो, बल्कि एक माइक्रो व्यू इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, कि सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके माइक्रो व्यू भी जरूरी है इंस्टेड ऑफ मैक्रो व्यू। नेक्स्ट इज आर, तो हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैंने इसमें दे रखा है, आप इसको लेटर ऑन कर लेना। अब एक सेकेंड, डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ गया, ये है आपके डिवीजन ऑफ लेबर। पर डिवीजन ऑफ लेबर करने से पहले एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ। Now let's proceed with division of labor, and in this division of labor here basically conflict क्यों अकर हो रहा है कि नॉर्मल केसेस में डिवीजन ऑफ लेबर इज व्हाट, डिवीजन क्या है, इंट्रोडक्शन इसमें हम बोलते हैं कि मार्क्स ने बोला कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इन 1893 में ही रोट अ वर्क। तो किस तरह से आता है डिवीजन ऑफ लेबर, इसकी क्रोनोलॉजी पीछे देखते हैं, क्यों है कैसे डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी आती है। क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो लाइक काफ़ी सारा डिस्ट्रप्शन हो जाता है, देखने को मिलता है, देखा जाता है वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, लाइक जो सोशल इंस्टीट्यूशन थे वो सारे फेल हो रहे थे, तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे मार्क्स ना एक हारमोनियस नेचर या हेट्रोजेनिटी को या कॉम्प्लेक्सिटी को पूरा मेंटेन करते हुए कोशिश करेंगे, अपनी थ्योरी देने के लिए कोशिश करेंगे, तो मतलब एक तरह से हारमोनी बनाए रखने की कोशिश करना चाहेंगे यहाँ पे मार्क्स नहीं, डरखाइम। सो डरखाइम यहाँ पे वो जब मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो ये बताएंगे कि फ्रांस में जब ये इस तरह से मॉरल क्राइसिस आ रहे हैं, मॉरल क्राइसिस फीलिंग ऑफ वाइड स्प्रेड जैसे हो रहा था यहाँ पे, तो मॉरल क्राइसिस आ रहे थे। डरखाइम यहाँ पे चाहते हैं एक सॉल्यूशन देना जिस पे वो क्या कर रहे हैं, सोशल ऑर्डर को वापस शेप में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ डरखाइम बोलते हैं कि लाइक फोकस करेंगे कि लाइक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और लाइक बोलेंगे कि जो आपके जो अगस्त कॉम्टे हैं, थिंकर हैं, इन्होंने जो बोला था कि लाइक हाई डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द कॉज ऑफ डिसऑर्डर, कि हाई डिवीज़न ऑफ लेबर है इसी की वजह से डिसऑर्डर हुआ है फ्रेंच सोसाइटी में। पर डरखाइम इस चीज़ को नेग्लेक्ट करेंगे, इस चीज़ को नकारते हुए बोलेंगे, क्रिटिसाइज करते हुए बोलेंगे कि लाइक ही रिजेक्ट करेंगे, कि लाइक अर्लियर इकोनॉमिस्ट वाले व्यूज़ को भी रिजेक्ट करेंगे, फिलोसोफर को भी रिजेक्ट करेंगे, बल्कि ये बोलेंगे यूटिलिटेरियनिज्म और डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ नॉट बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट के बेस पे नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक प्लेजर और यूटिलिटी है, एक तरह के प्लेजर और यूटिलिटी है इन द वेक ऑफ द सोशल अपहेल। ही एक्सप्लेन करेंगे दैट मॉरलिटी इन सोसाइटी हैज़ नॉट कम डाउन, मॉरलिटी सोसाइटी में डाउन नहीं आई है, बट इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मॉरलिटी, न्यू फॉर्म ऑफ मॉरलिटी से रिप्लेस हो गई है। लाइक सिंस डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फिनोमिना माना गया है अकॉर्डिंग टू डरखाइम, तो इट्स कॉजेस मस्ट ऑल्सो भी सोशल, उसके कॉजेस भी सोशल होने चाहिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू हिम डिवीजन ऑफ लेबर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज लाइक इन अ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ स्मॉलर प्रोसेस। तो अंडरटेक क्या कर रहे हैं बाय डिफरेंट पर्सन और अ ग्रुप। तो इट इम्प्लाइज क्या कर रहा है, स्पेशलाइजेशन विद इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशंस इन इस सिंबॉलिक क्या है, एक तरह का सिंबॉलिक नेचर है किस चीज़ का, डिवीजन ऑफ लेबर का। डरखाइम कंसिडर करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर एज अ सोशल फिनोमिना है, रिजेक्ट करते हैं जितनी भी ऑल क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन को ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए बोलेंगे कि अर्लियर एक्सप्लेनेशन अंडरस्टूड करेंगे, उसको बोलते हुए बोलेंगे कि द टर्म जो है, जो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी है या फिर प्रॉफिट है, जो है हमारा जो गोल है, तो डरखाइम आर्ग्यू करते हैं कि दैट डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट नॉट ओनली इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं है, बल्कि फैमिली में भी है, रिलेशन में भी है, हर जगह आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देगा। देयरफॉर ही सेज दैट
domestic division of labor, like at home also you will see witness a domestic division of labor, like घर में मम्मी का काम है घर का काम करना, या फिर घर में खाना पीना बनाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखना, बच्चों को सुबह टाइम से स्कूल के लिए रेडी करना, और पापा का काम है कि बाहर से जाके पैसे कमा कर लेके आना, दैट्स व्हाट। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर घर में भी दिखाई देता है। तो देयरफॉर इट इज़ अ सोशल फिनोमिना, ये क्या है, एक तरह का सोशल फिनोमिना हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फैक्ट। डिवीजन ऑफ लेबर एक क्या है, एक सोशल फैक्ट है, एंड इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ ऑटोनोमस डेवलपमेंट। एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट का एक प्रोडक्ट भी है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्यू जेनेरिस। स्यू जेनेरिस, स्यू जेनेरिस का मतलब होता है कि लाइक अब सोसाइटी में अपने आप से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ही डेवलप करेंगे कि कैजुअल फंक्शनल एक्सप्लेनेशन बिटवीन अ डिवीजन ऑफ लेबर टू प्रूव करने के लिए, सोशल फैक्ट को प्रूव करने के लिए। तो ये किस बेसिस पे बताते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे ये बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडरिटी दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट, इसमें बीच में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसमें ये बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएट करते हुए कि जो सोसाइटी है इज़ वेरी लो। डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे बोलेंगे मॉडर्न मैकेनिकल सॉलिडरिटी में जो सोसाइटी इज़ वेरी लो एंड इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन द एज एंड सेक्स के बीच में ही सोसाइटी पूरी की तरह से मॉडर्न सॉलिडरिटी में बेस सोसाइटी इसके ऊपर बेस्ड है। बट जब वो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात करते हैं तो बोलते हैं देयर इज अ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन इन सच सोसाइटी। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है डिवीजन ऑफ अ फंक्शन इज सिंपल इन मैकेनिकल सॉलिडरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी में डिवीजन ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट है, जो हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ बिलीफ, वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल। तो सेम डिफरेंट है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ होती है। ये कैसे होती है, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है ऑन बेस्ड ऑफ दिस व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो यहाँ पे करेक्ट मैकेनिकल सॉलिडरिटी में स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कंसेंसस आपको देखने को मिलते हैं। शेयर्ड मॉरलिटी डोमिनेट करती है। लॉ जहाँ पे रिप्रेसिव होता है, पनिशमेंट फॉर डिविएंट्स, जहाँ फॉर एग्जांपल इंडियन ट्राइबल सोसाइटी में या फिर मिडिवल विलेजेस में अगर हम देते हैं एग्जांपल्स, अगर हम इसमें लेते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लॉ क्या है, रेस्टिट्यूटिव है, रीस्टोर्ड रिलेशन एंड कॉन्ट्रास्ट पे। एग्जाम्पल के लिए अर्बन इंडस्ट्रियल इंडिया, जहाँ पे गिग इकोनॉमी वर्कर को ले लो, ये तो यहाँ पे लॉज आर रिफॉर्मेटिव हैं। ऑर्गेनिक सोसाइटी में, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में लॉ क्या है, रिफॉर्मेटिव हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी इज देयर अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप विच आर इंटरडिपेंडेंट। कैसे हैं दो, जो इंटरडिपेंडेंट है आपस में। तो यहाँ पे मेंबर्स बिकम डिफ्रेंशिएटेड एंड इंटर, दोनों में डिफरेंस है बट स्टिल दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वेन वी टॉक अबाउट कलेक्टिव कंसेंसस, तो कलेक्टिव कंसेंसस में डर्कहाइम बोलते हैं कि जो आपका जो शेयर्ड बिलीफ है ना एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी जो है ना कलेक्टिव कंसेंसस में, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन लाइक ऑर्गेनिक करेक्टर ऑफ द सोसाइटी इन विच पीपल आर डिफरेंट, दोनों लोग डिफरेंट है बट स्टिल लिव टुगेदर, बट फिर भी वो शेयर्ड वैल्यू एक तरह की सेम करते हैं। फंक्शन क्या है, उसके इंटरडिपेंडेंस है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अपॉन ईच अदर, लाइक द सोशल लाइफ हैज़ बिकम वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स है। हमारी सोशल लाइफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन गई है। एग्जिस्टेंस हमारा ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी इंटरेक्ट इनडायरेक्ट एसोसिएशन और विद द अदर्स। ऑल दो ये हमारी कंसेंसस लेवल पे एज एन इंडिविजुअल फील इंटर अपने लेवल पर वो देख लगेगा नहीं नहीं मैं तो, मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अनकॉन्शियस लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ही इज़ डिपेंडेंट अपॉन मैनी पीपल। ही इज लाइक ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट करेंटली स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम। आपको लग रहा होगा मुझे किसी की क्या ही ज़रूरत है, मुझे पढ़ना ही तो है, बट आप भी डिपेंडेंट हो यार। आप बोलो मैम किसके ऊपर, पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर, पैसे तो भाई भेज रहे हैं ना तुम्हारी पढ़ाई के, तो आप भी डिपेंडेंट हो, ठीक है। मॉरल बर्डन को क्लियर करने के लिए छोटे भाई बहनों के ऊपर डिपेंडेंट हो। लड़ते झगड़ते हम भाई बहनों के साथ में, डिपेंडेंट है ना हम आपस में एक दूसरे के ऊपर।
तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जो है ना फॉर द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, ये एक मॉडर्न सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन अ मास प्रोडक्शन, जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी का काम क्या है, मास प्रोडक्शन होना चाहिए फॉर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नीड ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि नीड ऑफ पीपल इंक्रीज हो रही है, लीड टू फर्दर स्पेशलाइजेशन, इसकी वजह से ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर ग्रांट कर देता है, ग्रांट क्या करता है, ऑटोनॉमी टू इंडिविजुअल्स को ऑटोनॉमी ग्रांट कर देता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर पे ना डर्कहाइम और आपके ये वेबर, सॉरी डर्कहाइम एंड कार्ल मार्क्स के दोनों के ना डिफरेंट व्यू हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स, तो डर्कहाइम बोलते हैं फंक्शनल है, इनकी बेसिस अप्रोच रहेगी, फंक्शनल रहेगी, वहीं मार्क्स हमारे कॉन्फ्लिक्ट रहेगी उनकी। तो बोथ डर्कहाइम एंड मार्क्स मेक अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन division of labor in simple society, complex industrial societies and acknowledge करेंगे that division of labor is inevitable। तो डर्कहाइम एक्सप्लेन करते हैं division of labor in the industries in industrial society as a कंसेंसस तो ऑफ इंक्रीज मटेरियल एंड मॉरल डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए स्पेशलाइजेशन ज़रूरी होता है, मेक्स इट पॉसिबल फॉर हारमोनियस को एग्जिस्टेंस, दोनों आपस में हारमोनियस को एग्जिस्टेंस करने के लिए ज़रूरी है। वहीं मार्क्स क्या बोलते हैं, डज नॉट सी, मार्क्स उसको उस तरह से कभी देखते ही नहीं है वो, क्योंकि हमने कार्ल मार्क्स किया है तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक इट एज अ मीन्स ऑफ कॉपरेशन है, को एग्जिस्टेंस है। ही व्यू करेंगे कि एक प्रोसेस है ऑफ फोर्स्ड अपॉन वर्कर, एक फोर्स्ड वे में वर्कर से काम करा रहे हैं, उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, जहाँ पे उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाया जा रहा है और उनको पे बहुत ही लेस किया जा रहा है। तो नेचर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में डर्कहाइम जो देखते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल वे में देखते हैं, लेबर एज अ फंक्शनल एंड लीडिंग टू कॉपरेशन की तरफ देखते हैं। वहीं आपके जो मार्क्स है ना वो फोकस करते हैं किस पे, कि डिवीजन ऑफ लेबर एज अ अनइक्वल है, बिल्कुल अनइक्वल रिलेशन है इसमें, जो लेजिटिमाइज नहीं करता रिलेशनशिप को बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट की बात करते हैं, वो बुर्जोइज एंड प्रोलेटेरियट्स की बात करते हैं। तो कंसेंसस लेवल ऑफ कंसेंसस ऑफ अ डिवीजन ऑफ लेबर में जब हम बात करते हैं डर्कहाइम बोलते हैं इट लीड्स टू अ इंटीग्रेशन इन सोसाइटी, ये सोसाइटी में एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। वहीं डर्कहाइम मार्क्स बोलेंगे नहीं नहीं, इट लीड्स टू डीह्यूमनाइजेशन, किसकी, कि ये डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्कर करता है एंड एलिनेशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स लाइक कैपिटलिस्ट इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम, कैपिटलिस्ट खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन कैन बी एंडेड थ्रू द रिवॉल्यूशन, इन प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन की ना ये पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं अगर एक रिवॉल्यूशन ला दिया जाए। बट जो डर्कहाइम में बोलेंगे नहीं, एनोमी इज एबनॉर्मल एंड अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम कैन बी हैंडल्ड बाय मेकिंग वर्कर्स कंसेंसस, वर्कर्स को कॉन्शियस बना दो उनको ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी, उनके रोल के बारे में समझाओ कि तुम एक सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट हो, तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इम्पोर्टेंस बताओ उनका, बाय मेकिंग देम फील ऑर्गेनिकली इंडीड, उनको ऑर्गेनिकली करेक्ट बताओ कि यस तुम भी एक बहुत बड़े प्लेयर हो, तुम भी एक पार्ट ऑफ सोसाइटी हो, बहुत बड़ा हो, तुम भी बहुत चीज़, तो उस तरह से क्या वो भी एलिनेट फील नहीं करेंगे। तो दे विल ऑल्सो बाय मेकिंग दिस दे विल फील ऑर्गेनिकली लिंक्ड, वो और अपने मन से उसमें लिंक्ड रहेंगे एंड इन्वॉल्व विद द लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, लाइफ जो है सोसाइटी एज अ लाइफ, तो उसके साथ में वो इन्वॉल्व रहेंगे। यही चीज़ बताएंगे। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी इग्नोर बताएंगे, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं अब इसके बाद में। ये बोलेंगे कि पूरी तरह से इन्होंने मार्क्सिस्ट तो इग्नोर करेंगे, लाइक क्लास कॉन्फ्लिक्ट वगैरह राइज रहता है। वेबर क्या बोलेंगे कि रेशनलाइज कर दिया इन्होंने सब कुछ, इनके हिसाब से तो सब ठीक है भैया, पर ठीक है बट ब्यूरोक्रेसी सुप्रीम है। आप जैसे टैक्स वगैरह क्या है, ब्यूरोक्रेसी सरकार लगाती है ना, दैट इज सुप्रीम। तो सुप्रीम सॉलिडरिटी सब कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सॉलिडरिटी। तो ओवरली आइडियलिस्टिक अजम्पशन है इनकी हार्मनी की, तो इग्नोर कर दिया किसको, इनइक्वालिटी, जो कास्ट और जेंडर के बेस में जो समाज में इनइक्वालिटी है उसको इन्होंने मतलब पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। दीज आर एग्जाम्पल्स, इनको आप पढ़ लेना एक एक बार। That's all for now. So we have covered 2 topics of Emile Durkheim. Tomorrow we'll be doing the next few more topics, 2 more topics. तो परसों तक आपका Emile Durkheim खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। Okay, bye bye. Take care. See you in the next lecture.